Yes, students. So now the next is about the double column cash book. So देखो इसका नाम ही है double column cash book. So here we'll have cash and bank column together. Means cash की transaction में इसमें आएंगी and whatever you are depositing or withdrawing or anyone other any receipt or payment through the bank, that is also recorded in the bank column. So in debit and credit side I have written date, particulars, ledger folio. बस में voucher number नहीं होता because बैंक का हम सारा ये रिकॉर्ड करते हैं ledger folio में. ठीक है जी. कैश एंड बैंक. सिमिलरली ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव डेट, particulars, ledger folio, cash and bank. So now I will solve illustration 4 on page number 10.15 from your book. The first is given on 1st March we have cash in hand 15,000 and cash at bank 50,000. So these are the opening balances. तो ये आपने पिछले क्वेश्चन में नहीं करे ना. So already जो आपके पास कैश या बैंक में पैसा बेटा पड़ा होता है वो हम इस साइड पे पुट करते हैं. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल द डेट ईयर इज 2020 दिया है आपकी बुक में March 1st. To balance brought down. So this is the opening balance. That is why opening balance you already have in cash and bank account would be written as to balance brought down. We have cash balance 15,000 and bank balance 50,000. So I have posted the balances. The next is purchase goods for cash and GST. लास्ट में आपको दिया तो जितनी भी गुड्स या एसेट्स की परचेज सेल है या रेंट है कमीशन है उसके ऊपर आपने खुद GST लगाना. So second entry is regarding the cash concept and we have CGST and SGST 6%. So here you will write this is the payment 3rd March. So यहाँ पर मैंने लिखा 3rd March by purchases account and amount is in the cash column क्योंकि cash की पेमेंट है और उसके नीचे हमने कर देना है by input CGST and by input SGST. That is 6% each. So that would be 360 and 360. Then afterwards, this is one of the new for you. In 5th March, we have deposited in the bank. So entry है बनी bank account debited 5,000 to cash account 5,000. So this is one entry which will affect bank and cash both. So this is known as contra entry. So वो entry जिसमें आपके दोनों columns इफेक्ट होते हैं कैश एंड बैंक, these entries are known as contra entries. Fine. So it would be recorded on the both side, means it would be recorded in the cash as well as in the bank column. So कैसे रिकॉर्ड करनी है? Please look at carefully. Bank account is debited here. Means बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे आपने पुट करना है यहाँ पे 5,000. Is it clear? So again I am repeating. Bank account is debited. So you will write bank account की डेबिट साइड पे 5,000. And the date is we have 5th March. So 5th March आपने डेट में लिख देना और लिखना क्या है? The credit aspect that is to cash. Is it clear? So बेटा अपने अकाउंट पे अपना नाम नहीं आता. So that is why I am writing in the bank column the amount and what the particulars I have written, that is to cash. So यहाँ पे to cash लिखा है लेकिन डाला मैंने बैंक में. And since it is affecting both side, it means दोनों accounts में एंट्री आएगी. अब कैश क्या हो रहा है? आउट. कैश जा रहा है तो कैश की क्रेडिट साइड पे भी आना चाहिए. So I have written 5,000 here and the date is 5th March. I will write here the debit aspect, that is by bank account. Fine. So this is totally new for you. This must be the part of double column cash book. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये जरूर पार्ट बनेगा, चाहे आप पैसा विड्रॉ करा रहे हो चाहे आप पैसा डिपॉजिट करा रहे हो. क्लियर? और जो आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं वो आपने दोनों साइड पे डिनोट करनी है सी से. जैसे लेजर फोलियो में आपने ऐसे सी डाला उसको सर्कल कर दिया और जिसमें ये सी नहीं लिखा मार्क्स डिडक्शन. अगेन लेजर फोलियो में सी. सो इट डिनोट्स मींस इट वुड बी द काउंटर पार्ट एंट्री. मतलब दोनों पार्ट्स में ये एंट्री. क्लियर? सो लुक एट द नेक्स्ट वन.
आपने खुद लगाना है, बिकॉज उन्होंने स्टार बना के आपको हिंट दे दिया है कि नीचे सारा जीएसटी रेट आपको दिया है। सो जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी यू विल हैव टू पुट योरसेल्फ। क्लियर? सो दिस वुड बी द पार्ट ऑफ कैश। देन आफ्टरवर्ड्स कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2000। सो ऑफिस यूज के लिए आपने कैश बैंक से निकालना है। इट मींस जर्नल एंट्री पहले बना लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? कैश account debited because cash is coming into your hand to bank account. So to bank account again, this is a counterpart entry, and what is the amount here? 2000. So cash account में भी आनी है, बैंक में भी आनी है. Again this is a contra entry. कैसे पोस्ट करना है? Cash account is debited with 2000. It means cash के डेबिट साइड में पुट करोगे मैं 10,000. यहाँ पे C, ठीक है, और the date is 10th March. So 10th March पे आ जाएगा to bank the credit aspect. In the same way, bank is credited, so bank के credit में 2000. यहाँ पे C, यहाँ पे March 10 by cash account. Is it clear? So बेटा contra entry जरूर ही आपको आनी चाहिए. Then afterwards, received from Damini 3000 and allowed him discount 100. So you are receiving cash from Damini. So it is a simple journal entry to Damini, and the date is 12th March. Okay? और इसके अमाउंट किसमें आएंगे? कैश. Is it clear? And one more thing is given to you, that is discount. So discount means discount allowed account debited. So यहाँ पे नहीं आएगा because we are running with the cash in bank only. Discount will not be a part of your account. Clear? So next, received a check from Nimrat. ठीक है जी, निम्रत से आपने चेक रिसीव करा है 2000 और उसका डिस्काउंट आपने लॉ करा, तो डिस्काउंट तो आपको क्लियर ही है कि डिस्काउंट जो है अलाउड, दैट इज टू बी स्क्रिप्ट, क्योंकि वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आएगा, यहाँ पे नहीं आना. ठीक है. और फाइनली एक और चीज नहीं है इसमें कि जब आपने चेक रिसीव करा है किसी से, इफ यू हैव रिसीव्ड द चेक ओनली इन दैट केस, पेड के केस में कोई चक्कर नहीं है. जब आपने किसी से चेक रिसीव करा बेटा, आपने आगे एक दो लाइन तक क्वेश्चन पढ़ लेना है कि आपने डिपॉजिट उस दिन करवा दिया या नहीं करवाया. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ वी हैव रिसीव्ड चेक फ्रॉम निम्रत दैट इज ऑन 15th मार्च, आपको क्वेश्चन में दिया है कि 15th मार्च को आपने चेक रिसीव करा निम्रत से, तो आपने 2-3 ट्रांजैक्शन तक आपने चेक कर लेना है कि वेदर दिस चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक और नॉट. अगर ये डिपॉजिटेड नहीं कराया मींस नहीं लिखा आपकी बुक में, तो इट इज इम्प्लाइड, ये अज्यूम कर लेते हैं कि जिस दिन चेक आया उस दिन ही बैंक में चला गया. सो कई बार क्या होता है कि अगर सपोज आज मेरे को कोई चेक दे के गया, मतलब टुडे इटसेल्फ, तो मैं आज उसको डिपॉजिट करने नहीं भेज सकती, तो मेरे को 2-3 दिन लग गए हैं कि उस चेक को मैं बैंक में जमा करवा रही हूँ. सो इट मीन्स बैंक would record the transaction on that particular day when you are going to deposit the check into the bank, not today. ठीक है. तो अगर आज मैंने चेक रिसीव करा है 15th मार्च को, तो क्वेश्चन में नहीं लिखा कि डिपॉजिट कब करवाया, इट मीन्स आज ही करवा दिया. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू निम्रत, तो मैंने यहाँ पे कर दिया टू निम्रत अकाउंट on 15th March. Is it clear? And the amount is 2000 that I will write in the bank. जो खाली है उसको चाहे हाइफन में डाल दिया करो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो टू निम्रत करके मैंने बैंक में डाल दिया 2000. Now the next entry, this is received the post dated check from Deepak. So post dated check का मतलब क्या होता है कि आपने आज आपको चेक मिल गया दीपक से 5000 का, दैट इज पोस्ट डेटेड मींस दैट इज टू बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 23rd मार्च. देखो ना राइटिंग में लिखा है कि अगर आज चेक रिसीव हो गया, दैट इज द डे ऑफ 18th मार्च. 18th मार्च को आपको वो चेक मिला है, बट वो बैंक में डिपॉजिट कब करवाना चाहिए? 23rd मार्च. सो इट मीन्स 18th मार्च को आपकी कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं आई.
check on 23rd March. So obviously बैंक एंट्री कब करेगा, जब आपने चेक दे के आना। सो बेटा ये वाली एंट्री जो 18 मार्च की हमारी बुक में नहीं आती, क्योंकि इस दिन हम एंट्री पास करते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू दीपक अकाउंट। मतलब वी विल राइट अ डिफरेंट नेम ऑफ अकाउंट, दैट इज चेक्स इन हैंड अकाउंट। सो इन 23rd मार्च जब आएगी हमारे सीक्वेंस के हिसाब से, तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, सिंस वी आर डिपॉजिटिंग द चेक इनटू द बैंक, टू दीपक नहीं करना, टू चेक्स इन हैंड। Is it clear? So two checks in hand आपने करना है, reason being this check is deposited on 23rd March। और यहाँ पे दीपक नहीं कर सकते, because logically आप सोचो दीपक ने आपको 18th को दे दिया है, तो आपकी बुक में दीपक का नाम 18th को ही आ जाना चाहिए। If you will post on the 23rd, that would be illogical. So that is why जब हम 23rd में पहुँचेंगे, ठीक है, तो क्लियर कर देखो लिखा भी है अगली लाइन में कि received check from Deepak is deposited into the bank on 23rd March. So 23rd March को हमने एंट्री की पोस्ट करनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड। It means 23rd March here I am going to post two checks in hand. This is check of 5,000. ठीक है जी, 5,000 का चेक था, हाँ जी। सो टू चेक्स इन हैंड के नाम से आएगा बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक में हमने ये डिपॉजिट करा दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इशूड चेक टू चंदर 2500। अब आपने चंदर को चेक दिया है, तो पेमेंट बाय चेक बाय चंदर बैंक अकाउंट में आनी है 2500 दैट इज ऑफ 24। Is it clear? Now next is withdrew from bank for personal use. So personal use मतलब drawings। अब बैंक में से आपने पैसा निकलवाया है और अपने घर ले गए हो आप। So this is not the counter entry, this is not the counter entry। ये counter entry नहीं है, क्योंकि इसकी एंट्री क्या बनी है हमारी, drawings account debited, drawings account debited to bank account। Since bank has given a check और ड्राइंग्स मीन्स आपका पर्सनल है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट किसमें आपने डालनी है, इन द बैंक कॉलम वी हैव 1500 है। देन नेक्स्ट इज परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब these are not the cash involving transaction, skip that। and next is also the credit, purchase goods on credit। तो बेटा ये भी एंट्री नहीं आनी। और नेक्स्ट क्या है, received check of 2000 from अशोक मित्रा and deposited into the bank। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आपने कोई चेक रिसीव करा है, so you will check in the question whether it is deposited on the same day or not। और यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि आज ही वो डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ पे हम कर देंगे टू अशोक मित्रा। This is on 31st March, ठीक है जी, and amount is 2000। Is it clear? So last में आपने क्या करना है, अपने अकाउंट का बैलेंस करना है, means we will total the two columns cash and bank separately। कैश का टोटल कैश के साथ मैच करना है, बैंक का टोटल बैंक के साथ मैच करना है। Is it clear? So let's see first of all कैश का कितना आता है, 15,000 प्लस 10,000, ठीक है जी, 10,000 और 15 25 27 30 31,200 आता है डेबिट का टोटल। और यहाँ पे कितना आता है, 11,000 18,000 11,720। Is it clear? So कौन सी साइड बिगर हुई हमारी, कैश साइड, दैट इज 31,200 31,200। तो लोकल फिगर डाली है ना हमने, डेबिट का टोटल आया था 31,200 और क्रेडिट का 19,480 would be your yes, यही है क्वेश्चन में। यहाँ पर मैंने लिख दिया March 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
बेटा जैसे मैंने ब्रॉट डाउन एक ही बारी लिखा, दोनों का कैरी डाउन भी एक ही बारी लिखना है, निकालना आपने अलग अलग है। पहले कैश को कैश के साथ बैलेंस कर लिया करो, फिर बैंक को बैंक के साथ। सो 19,400 इन द सेम वे बैंक का टोटल कितना आएगा 64,000 डेबिट साइड, और क्रेडिट का कितना आता है 5, 4, 6, so 58,000 would be your figure. 58,000 would be the closing cash, sorry, bank balance. So in this way cash and bank column would be together, it would make our double column cash book. So बेटा आपको journal पता होना चाहिए, only then you can format your practical problem into the answer properly. Clear?